Hi, folks. Welcome back to yet another edition of the talk show. Today is a very special day. For the reason being, it's another student of mine, ex-student of mine said, sir, students would be impressed or students would like to know about entrepreneurs in tourism industry. So the first name that came in my mind is today's guest, Mr. Chinmay Gurjar. And he is a young, brilliant entrepreneur as a tour operator in Mumbai city. All right. I would not speak much about what he is, what he's not, because he's got a short experience of 9 years. But listen to him. What has he done, and how about he's gone about being an entrepreneur or a tour operator in Mumbai city? Welcome, Chinmay. How are you? Fine, sir. I'm great. How are you? Doing good. Doing good. Chinmay, let's get on to the discussion directly. So how did you start? Where did you go about? How was the career crafted? I wanted to know it from you itself. So let's have it from you. How did you start about? What did you do? As I said before also, it started with like around 2010 when we were in college, 2010, 2011. Right. When all those things happened, we started our internship with Sachin Travels. And at that time, I just thought like I should be a tour manager. But after coming back, again, working with some other companies, we get to know how the back office works. And it's not only the tour manager, he's the face of the tour or something. But there are many other components. Like आपको अगर टूर के बारे में बात होनी है आपकी, तो if you need to have a tour company, you need to learn many other different points also. So from 2013, actually, I started my own company. Side by side, I was working with Sachin, HMA, and two other different companies as a freelancer. But it's not that easy what we say, basically. There are many ups and downs, and still we are fighting, and still it's going on and on. And as an entrepreneur, it's always like that. So you need to be like, you need to face each and everything with a smile. What we say, nothing else. Right. So we will know what the ups and downs were. How did you go about? How did you cope? So that could be a torchlight to audience listening to us. So first, the second question is, how does formal education in travel and tourism help you to do what you want to do today? How did it help you at all, or how was it like? Yes, as I said, I am basically into domestic, and I was from my first point, like from when I was in this tourism, I started studying for tourism. I was every time thinking about domestic, something like I need to do something for India or like that. Right. So I was not that good with international. Anita ma'am used to scold us each and every time. I know that. But yes, while doing all those stuff, exploring India and all that kind of stuff, India is pretty vast. And what I did was like I made many mistakes. There were many disputes and each and everything. But everything happens for a reason. We come to know after some time. Yes. Yes, that's what my main point of view is. Okay. So if you talk about tour operations, domestic tour operations, any particular subject do you think you should say you should be focused on? Any particular concepts you should know basically to be a tour operator? What is it like? For tour operator, I would not say, could you repeat your question, sir? Any particular subjects, in your college days you should be focused on to be a tour operator? Anything that you think 2 or 3 subjects are very important as such? Domestic tour operator? I would say each and every subject is that much important. Right. But yeah, but if you have a plan to be like, you need to start your own company or something. Yeah. It's not like just you can start your company. The main thing is how you sustain in this market. It's all depend on marketing, branding, and everything. What we learned from you, actually. Right. The marketing,
the 7 P's and each and everything. We still remember. We have our we have all those written points with us, like how you told us the resort project and each and everything. Like Right. Right. there are many points what I would like to say. Like you don't get any kind of like from the tourism industry or the government of India, you don't get that much kind of help. Like now in this situation also we can see we are not getting that much of help from the government or something. Mhm. So people need to be independent. They need to think how the situation will change and they need to adapt to that situation. What I would always say. Chinmay, I have a very practical question for you because it's been in 9 or 10 years that you have left the role of being a student. Now you're into tourism. So what is that you say I did not do when I was there in college for 2 years? ये करना चाहिए था, ये अगर करता मैं तो आज मुझे उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता, मैंने किया नहीं. ऐसा कोई इश्यूज है जो आपको लगता है कि आपने 2 साल में नहीं किया जो करना चाहिए था? सर ऐसे बहुत इश्यूज मैं कह नहीं सकता, बट यस मार्केटिंग का जो है आपने हमें सिखाया था. व्हाट आई वुड पर्सनली से मार्केट का जो ट्रेंड है, मतलब मार्केटिंग में वो 7 P's एंड एवरीथिंग, बट ईच एंड एवरी ईयर द मार्केट ट्रेंड ऑल्सो चेंजेस. और वो ट्रेंड के साथ एक ट्रेवल कंपनी को भी खुद का चेंज मतलब दे नीड टू एक्सेप्ट द चेंज एंड मूव फॉरवर्ड. इफ यू आर स्टक विद दैट समथिंग तो आपका बिजनेस भी वही स्टक हो सकता है. एंड दैट्स द मेन थिंग. लाइक अभी के सिचुएशन के बाद भी ट्रेंड चेंज होने वाला है. वी नीड टू गो विद द ट्रेंड. सबसे मेन थिंग ये है. सो मार्केटिंग, फिर टिकटिंग हो गया, हर एक चीज सर इम्पोर्टेंट है. और मैंने ऐसा मिस तो नहीं किया, बट यस पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एक है जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इसमें. उसके लिए लाइक हाउ यू मेक योर इम्प्रेशन. पहले मेरा भी ऐसा कुछ था. लाइक मैं बहुत लोगों से मिला, my impression was something wrong on them, so मुझे business नहीं मिल पाया. So it happens in our field. Like आप कितना करते हो, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ये आप बाद में बता सकते हो उनको. But when you see, when they see us, like वो अगर impression भी गलत हो गया, तो कुछ ना कुछ problem भी हो सकता है. Right. तो communication जो है, communication skills जो है, वो time to time it should be updated as such. Right. Right. Okay. बातों बातों में आपने बोला कि आप ऑल्टो कार में इस पिछले काफी सालों में आप पूरे इंडिया घूम चुके हो. तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इंडिया घूमने के बाद एंड ऑफ द डे चिन्मय बोलता हूं, दिस इज व्हाट अ ट्रैवलर लर्न्स फ्रॉम ट्रैवलिंग. ऐसा क्या चीज है कि आप सीखते हो? पहले उस पे जाते हैं, फिर जाते हैं कि कहाँ गए आप? फर्स्ट सर मैं यहाँ से मुंबई से तो पहले कोंकण घुमाऊं. Okay. अभी तो इन डिटेल बोलूं तो आई हैव लाइक इंडिया के अगर मेघालय छोड़ा तो बाकी सारे मोस्टली मैंने सब एंड उड़ीसा ये छोड़ के बाकी सब स्टेट्स में घूम चुका हूँ मेरे कार से पर्सनली. एंड जब हम खुद घूमते हैं तभी हमें मालूम होता है, लाइक एज आई सेड, कि इफ यू नीड टू बी इन टूरिज्म बिजनेस यू नीड टू रोम अराउंड. You need to speak with different people. आपको अलग अलग लोगों से बात करनी है, उन्हें क्या लगता है, उन्हें लाइक कैसा है. सर अभी हिमाचल में जाते हैं, वहां पे टूरिस्ट तो जाते हैं, बट एज अ टूर लीडर या एज अ टूर ऑपरेटर आप वहां पे जब लोगों को भेजते हो तो आपको वहां का सीजन हो या कुछ भी हो, देयर आर मेनी कंपनीज जो बुकिंग करते समय, हाँ सर आपको मीन्स आई एम सेइंग माय एग्जांपल कि मैं जब सचिन में जॉब करता था, एक एग्जाम्पल बताता हूँ सर, कि हमें तो लोग बस में बैठते ही दिल्ली से निकलते थे, अरे अभी हम शिमला जा रहे हैं तो हमें बर्फ दिखेगी ना इन सीजन ऑफ मे. सो दिस इज द मेन पॉइंट कि आप जब आपके लोगों को बराबर से समझाते हो कि मनाली में जाने के बाद भी आपको मई में रोहतांग पास के यहाँ पे जाना पड़ता है तभी आपको बर्फ दिखेगी. इट्स नॉट लाइक कि ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी चीजें यू नीड टू अंडरस्टैंड. आप जब वो रूट पे जाके आते हो एक बार तो आप बहुत अच्छी तरह से सबको बता सकते हो क्या है क्या नहीं है, व्हाट आर दी प्लस पॉइंट्स, व्हाट आर दी निगेटिव्स. हर एक जगह के होते हैं, आपको कैसे बिहेव करना है कौन से लोगों से. क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पे बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं कि दे डोंट एक्सेप्ट ऑल, वो एक शक की नजर से देखते हैं. बट हमारे लोग भी वहां पे जाके अगर उनके साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं तो
आई हैव बीन विद देम एंड मुझे अभी तक कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा. तो देर आर मेनी इंसिडेंट हैपेंस लाइक लद्दाख में भी है, लेह में जाते हैं लोग, फिर लेह में आप उनके यहाँ पे जाके अगर जैसे वी से देर आर मेनी थिंग हैपन लाइक ड्रिंक्स करना हो या कुछ हो, वहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगता. सो आपको वो सब संभाल के करना चाहिए. एंड यू गेट टू नो व्हेन यू स्टे विद दीज पीपल, आपको वो लोकल्स आपके दोस्त बन जाते हैं. आप जब पूरा इंडिया घूमते हो, for any trip I would suggest ki if you are marketing or branding or anything, you need to know exactly how it is before that. The product knowledge is the what we say, right, the right. main. Yeah, Chinmay, also I want to know because when we had a chat on over the phone, you said, sir, मैंने north का sectors बहुत किए. So which are sectors you have done mainly, or why did you focus in north so much as a tour operator? कुछ advantage है या ऐसा हो गया? सर मैक्सिमम इंडिया में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रैवलर्स महाराष्ट्र हो गया, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, यहाँ से बहुत ज्यादा है. अच्छा. कंपेयर टू पीपल ट्रैवलिंग टू दिल्ली. वहाँ के भी है लोग, बट वो लोग फॉरेन में जाते हैं, थाईलैंड, बैंकॉक. जब डोमेस्टिक ट्रैवल की बात आती है तो महाराष्ट्र, गुजरात ये सबसे ज्यादा है. तो व्हेन यू आर लाइक हमें महाराष्ट्र और गुजरात के लोग 20-25 हजार रुपए खर्च करके कोंकण के बीचेस देखने नहीं आते, बट वो वहीं पे 40,000 खर्चा करके लद्दाख में आ जाते हैं उसके लिए. सो मेन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था बिजनेस का कि मैक्सिमम पीपल लाइक नॉर्थ. तो वो नॉर्थ का कैसे पहले ऐसा सिस्टम था लाइक 2010-11 में जब हमने करियर शुरू किया था कि समर्स में लोग खाली नॉर्थ में घूमने जाते थे, बट नॉट इन विंटर्स. बट राइट नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग. राइट नाउ इट्स बीन लाइक 12 months ट्रेवल. हर एक सीजन वाइज अलग अलग वेदर्स होते हैं. लोगों का अभी ट्रैवलिंग का भी जो सेंस है, पहले लोग सिर्फ घूमने जाते थे, साइट सीइंग पॉइंट्स हो या कुछ हो. नाउ पीपल गो टू लर्न समथिंग, पीपल गो टू एक्सप्लोर समथिंग. लाइक स्पीति, हम विंटर स्पीति के ट्रिप्स करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था, -30 -40 टेम्परेचर्स में वहां पे लोगों के घर पे जाके रहना. हाउ दे स्टे, वी स्टे देयर फॉर अ वीक विद देम. हाउ द लाइफ इज people get to know. And we the youngest of our traveler in winter Spiti was 87 years old, so and he enjoyed that. So that's what I'm telling, staying with them in their house, how they have their food, what is their daily routine for a week. लोगों को अभी ये सब एंजॉय करना अच्छा लगता है. and there are not many people who do all this kind of stuff. so ये अगर आप टूरिज्म फील्ड में अगर कुछ आप अलग कर रहे हो ना, तो आपको जरूर आगे जाने का बहुत अच्छा स्कोप है. okay. चिन्मय, और एक बात रही कि मैं कॉलेज छूट चुका है, पढ़ाई हो चुका है, अभी मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, लेकिन 9 साल हो चुका है आप इंडस्ट्री में हो. तो इस 9 साल के दौरान आपने सीख as lessons as not being in class but in real life lessons क्या सीखे आपने, और उसमें से क्या आपने इम्बाइब किया ताकि आप और भी बेहतर एक प्रोफेशनल बने या एक ट्रैवल में आप काम कर पाए? ऐसा क्या सीखा आपने? सर लेसन्स तो बहुत सीखे, मतलब आपको तो मेरे सब पता है. आई वुड से टू ईच एंड एवरी अदर वन कि खुद मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसा कभी मत सोचना. कभी भी हमारा पैर कौन खींचता होता है, क्या करता होता है, कुछ किसी को पता नहीं है. डोंट लाइक दोस्ती है, सब है, ठीक है. मोस्टली व्हेन यू डू योर बिजनेस, ट्राई टू डू इट अलोन, आई वुड सजेस्ट. अगर कुछ भी है, पैसों का जो बात है, सबसे मेन मनी इज द मेन पॉइंट फॉर सब झगड़े का. जो मेन कहते हैं वो पैसा ही है. तो वो आप जितना संभाल के रखो. अकाउंट्स इज द मेन थिंग जो टूरिज्म में हमें सिखाया जाता है, बट उस पे हम लोग बहुत मतलब निग्लेक्ट करते हैं, आई वुड से. बट अकाउंट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट पीपल शुड नो. क्योंकि आपके टूर की कॉस्टिंग के वजह से आप 100 रुपया 200 रुपया भी यहाँ वहाँ होता है. जब आप 100 बच्चों को लेके जाते हो तो वो 100 रुपए भी आपके लिए बहुत मायने हो जाता है, मायने रखता है, बड़ी बात है उसके लिए. तो ये सारी चीजें हैं. मैंने भी वैसे किया था. आई स्टार्टेड एज आई सेड, आई स्टार्टेड एन होटल इन मनाली, टेकिंग अ होटल इन लीज. लोन लिया पिताजी से सब करके. बट वहाँ पे कैसे सर, मनाली में सीजनल बिजनेस होता है. मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया, और मतलब चलो दोस्त है, हम करेंगे एक साथ, सब है. बट जब पैसे रहते सब रहते, जब नहीं होता सब हाथ ऊपर कर लेते. और फिर तभी ऐसा होता है कि आपको लोन्स भी भरने, ईएमआई भी भरने हैं, आपको सैलरी भी देनी है,
और सब चीजें, फिर आपका नाम खराब हो सकता है। और वैसे तो होता है, बट नेवरदलेस सब कुछ अच्छे के लिए होता है। अभी हम हैं अच्छे, कुछ आगे अच्छा और कर रहे हैं उसी के कारण, क्योंकि तभी अगर वो सब ठीक चला होता तो आज शायद हम यहाँ पे बात नहीं कर पाते। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम लोग उसमें आएंगे अगले हमारे अगले एपिसोड में, लेकिन आज आज अभी इस वक्त आज के लिए मैं एपिसोड को समराइज करता हूं जो चिन्मय ने बोला है। एक है कि हाँ, अगर आपको टूर ऑपरेटर बनाओ या टूर कंपनी डालना हो तो यस, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसे आता है? बाय यू ट्रैवलिंग टू अ डेस्टिनेशन एंड मेकिंग एन इंक्वायरीज बाय योर ओन। आप खुद जाके देखिए कि भाई जगह कैसी है, क्या ऑफर करती है। दूसरा है कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से तीसरा चौथा स्पीकर बोल रहा है कि जो एक्सपीरियंस मिला है उससे कम्युनिकेशन स्किल जो है, हुनर जो है, उसे हमें अच्छा करना है। दैट मीन्स आप कैसे दिखते हो, आपका बाल कैसे कटा है, नॉट ओनली कम्युनिकेशन, आप कैसे अपनी बात को सामने डालते हो, कन्विंस करते हो, बहुत मायने रखती है। और तीसरी बात है कि हाँ भाई, इफ इट इज बिजनेस, वो टिप फ्रॉम चिन्मय, उन्होंने बहुत फ्रैंकली बोला, बहुत ओपनली बोला, इफ इट इज बिजनेस आप करना चाहते हो तो आप खुद बनिए, उसके लिए आप अपना खुद पैसा डालिए। और अकेले करने में जो मजा आता है वो otherwise not really, but otherwise again experience is something that everybody should learn from. Something to add Chinmay? कुछ भूल चुका हूं मैं? Yes, as I said कि if you are going to be an entrepreneur in tourism, I would say कि गवर्नमेंट हो, बैंक्स हो, कहीं से आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। बट दिस इज समथिंग लाइक, ये जो फील्ड है यहाँ पे अगर आपको घूमना पसंद है और आपको ये बिजनेस में आना है तो इट्स नेवरदलेस लाइक जो प्लेजर मिलता है ना सर, वो मनाली के रोड्स पे -20 डिग्रीज में बैठ के हो, या राजस्थान में हो, या आप कन्याकुमारी में बैठ के हो, इट्स समथिंग डिफरेंट। अभी तक तो मैंने जैसे कहा आपको, आई हैव नॉट बीन आउटसाइड इंडिया स्टिल, सो बट तो भी लाइक इन इंडिया ऑल्सो देयर आर मेनी प्लेसेस लोगों को मालूम भी नहीं होते। वी कैन एंड वी विल श्योरली एक्सप्लोर ऑल दिस। और जैसे आई सेड, if anybody wants anything, any kind of help, they can contact you, like आपके पास मेरा नंबर तो है, and I will surely guide them। अगर किसी को भी कुछ करना है, they can surely join me also for any kind of trips if they want। चिन्मय, हम अब आपको इतने जल्दी छोड़ने वाले नहीं है, आप वापस आने वाले, विल टॉक अगेन, और हम बात करेंगे चिन्मय आज के तारीख में क्या कर रहा है, किस प्रोडक्ट पर फोकस कर रहा है। इट इज समथिंग कॉल्ड ऑफबीट डेस्टिनेशंस। ऑफबीट डेस्टिनेशन है क्या, कौन से सर्किट से, कहां पर है, और वो आपसे ये भी बताएंगे कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना हो तो कहां से शुरुआत करे, कैसे करे, बेबी स्टेप्स कैसे ले और आगे कैसे बढ़े। So Chinmay is not going anywhere, and as he said, yes, if there is students or the travel fraternity wants to interact with these professionals again, we can have a webinar where we'll have panel of people and you can ask questions to them in the days to come. So it depends upon what the response is, definitely. But Chinmay, thank you so much for joining us today. We will catch you again some other day for the next episode. Yeah. Thank you very much. Thank you. Bye bye. See you. Bye bye.